Hey class, how are you? Good morning. Chalo, today we are going to start with sexual reproduction. We are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. लास्ट टाइम हमने बोला था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, या तो मम्मी या पापा। यहाँ पर दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तभी न्यू बॉर्न बेबी होगा। This is known as sexual reproduction. Bulls alone cannot produce the new calves, nor can hens alone produce the new chickens. In such cases, both the sexes, male and female, are needed to produce new generations. And what is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitations of asexual mode of reproduction? Which we have been discussing about. तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? Why the sexual mode of reproduction? First thing, the creation of two new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. क्यों होता है? The creation of two new cells from one involving copying of, एक तो डीएनए को कॉपी करना है एज वेल एज ऑफ द सेल्यूलर अपैरेटस, और दूसरा सेल्यूलर अपैरेटस कॉपी करना है ना। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, एज वी हैव नोटेड, कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट and the resultant errors are a source of variation in populations of organisms. तो कॉपी करना, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि कॉपी जब करते हैं तो हूबहू पूरी की पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर कमी ना बोलो, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा भी हो सकता है ना। तो वेरिएशन हो गया दो अलग अलग। But in a population, every individual organism cannot be protected by variations. But in a populations, variations are useful for ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variations to be generated. तो वेरिएशन जो है डीएनए की जो कॉपी हो रही है वो से अच्छी भी कॉपी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ओरिजिनल से भी कॉपी करने वाला बेहतर कर लेता है। अब समझ लो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा बुरा तो ठीक है। कोई आपने पुराना गाना सुना, राइट, और उसको कोई रिमिक्स करके कोई अभी नया गाना गाएगा। हो सकता है पुराना गाना सुनने से ये नया वाला गाना आपको बहुत अच्छा लगता हो सुनने में, है ना। सो वेरिएशन आ गया ना, दिस इज नोन एज वेरिएशन। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग किसी को कॉपी करते हैं तो कॉपी ठीक से नहीं हो पाती है, अच्छी नहीं बनती है, राइट। तो कितना बुरा लगता है। जैसे सब लोग आर्टिस्ट नहीं होते है ना ड्राइंग करने में, तो आप लोग देख देख के कोई चीज़ बनाने जाओगे, राइट, तो कैसा मजाक भी बन सकता है कि ये फ़ोटो बनाया है, ये देखो साइकिल बनाई है तुमने, साइकिल के टायर कितने छोटे हैं और सीट इतनी बड़ी बना दी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो नहीं आता है एक एग्जैक्ट वो कॉपी होना, है ना। तो वेरिएशन बन गया वो एक। उसी तरह इंडिविजुअल्स में भी हम लोग जब डीएनए को, सेल को कॉपी ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वेरिएशन होता है। वेरिएशन जो है वो एक आशीर्वाद है, वैरायटी होती है, राइट। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. डीएनए कॉपिंग जो मैकेनिज्म है, जो कॉपी करने का तरीका जो है, वो एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होता है, ओके। If the DNA copying mechanisms were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. अगर आपने ठीक से मैकेनिज्म कॉपी नहीं किया तो वो अपैरेटस को ठीक से चला नहीं पाएंगे और वो डेड हो जाएंगे, राइट। तो दोनों चीज़ें हैं।
So how can the process of making the variations be speeded up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generations. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining various variations from two or more individuals would thus create new combinations of variations. Each combination would be novel since it would involve two different individuals, and the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during the reproduction, right? But this creates a major difficulty. अभी एक difficulty भी आती है क्या? If each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. Besides, if each generation doubles its DNA, fairly soon there will be only DNA on the earth with no room for anything else. So, how many ways can we think of for solving this difficulty? अगर इसी रफ्तार से सिर्फ डीएनए कॉपी होते रहे तो क्या होगा कि इस पृथ्वी पर सिर्फ डीएनए ही बचेगा फिर, राइट? तो इस डिफ़िकल्टी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स become more complex, the specialization of the tissues increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. Thus, when these germ cells form two individuals combined during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of number of chromosomes and the DNA content in the new generation. तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे अप्लाइड नहीं होते सेल्स को डीएनए कॉपी करने में. वी हैव सीन, देखो क्या बोल रहे हैं, वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड for the problem mentioned above is to have special lineages of the cells in specialized organs. सारे organs में नहीं, specialized organs में ही lineages बनती है which have only half the number of chromosomes. उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो डीएनए को कॉपी करते हैं, एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स. जो दूसरे बॉडी सेल्स हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं, राइट, उसमें जो रिप्रोडक्टिव है उसमें हाफ नंबर ही होते हैं क्रोमोसोम्स के और डीएनए का. Thus, when these germ cells form two individuals combined during sexual reproduction to form a new individual, तो एक न्यू इंडिविजुअल बनाना है तो हाफ और हाफ लेके एक फुल बनेगा. ओके, इट रिजल्ट्स इन द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 है ना. तो 46, तो पैर कितनी हुई? 23rd जो होती है, बाकी सब तो सेम होते हैं, सिर्फ एक ही ऐसी क्रोमोसोम की पैर होती है ना,
या तो एक्स एक्स या तो एक्स एंड वाई, हाफ नंबर ओनली। आगे आएगा, आप देखना चैप्टर में। इफ द zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। तो अगर किसी जाइगोट को एक न्यू इंडिविजुअल बनना है, ऑर्गेनिज्म बनना है, तो उसमें क्या होना ज़रूरी है? विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। देन जिसके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं, तो इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। In very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another। तो जो दो germ cells हैं वो एक दूसरे से इतने अलग नहीं होते, or may even be similar also sometimes, but as the body designs become more complex, the germ cells also specialized। One germ cell is large and contains the food stores, while the other is smaller and likely to be motile। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, ऑर्गेनिज्म होगा, तब यहाँ पर भी ये आपको वेरिएशंस होंगे, राइट। द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज्ड। वन जर्म सेल इज़ लार्ज, एक बहुत बड़ा लंबा होगा, बड़ा होगा, और उसके अंदर फूड स्टोर्स होंगी, जबकि दूसरा जो होता है वो छोटा होता है और मूवेबल, मोटाइल होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गेमेट। तो जो मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, राइट, वो होता है मेल गेमेट्स। एंड द जर्म सेल्स कंटेन द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गेमेट। तो देखो, एक मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, राइट, मोटाइल है। दूसरा जो है वो बड़ी साइज़ का है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो है फीमेल एग सेल। तो फीमेल एग सेल यहाँ से वहाँ मोटाइल नहीं हो सकता, लेकिन मेल एग सेल जो होता है, मेल गेमेट जो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मोटाइल होता है, घूम फिर सकता है, तो वो घूम घूम के एग सेल से यूनाइट हो जाएगा, राइट। फिर उसको एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी तो फीमेल में से, एग सेल में से मिल जाएगी। ओके, वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये जब दो सेल्स जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उनमें से, तो वो बनेगा या तो मेल या तो फीमेल। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल जो है, जो उसको वो ऑर्गन डिटेक्ट करेगा कि इसमें से मुझे मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है, राइट। इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो बाकी सब तो सेम ही होता है, दो आँख, दो कान, एक नाक, 10 उंगलियाँ, दो हाथ, दो पैर। सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और वो इसी दो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? The reproductive part of angiosperms are located in the flower. Reproductive parts of angiosperms are located in the flower. Flower के अंदर होते हैं। You have already studied the different parts of a flower. Flower के अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं? Sepals, petals, stamens and carpels। स्टेमेन जो होता है एंड कार्पेल आता है, वो स्टेमेन एंड कार्पेल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विच कंटेन्स द जर्म सेल्स। बाकी सब जो सेल्स है उसमें जर्म सेल्स नहीं है, सिर्फ स्टेमेन और कार्पेल में ही जर्म सेल्स है।
What possible functions would the petals and the sepals serve? तो फिर पेटल्स और सेपल्स का क्या काम है? क्या वो ज़रूरी नहीं है फ्लावर में? हाँ, ज़रूरी तो है, लेकिन उसका रोल कुछ अलग होता है ना? क्या रोल है देखो। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, या फ्लावर जो है वो बायसेक्सुअल, दोनों हो सकते हैं, है ना? आप नहीं बोल सकते कि ये फूल जो है ये लड़का है और ये फूल जो है वो लड़की है। कभी कभी लड़का और लड़की के दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही फूल में होते हैं, राइट? तो वो बायसेक्सुअल भी होता है। देखते हैं कैसे। देखो, पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन है वो भी यूनिसेक्सुअल है। when it contains either the stamens or carpels or bisexual, यानी कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड वो बाइसेक्सुअल है। when it contains both stamen and carpel, तो फ्लावर के अंदर या तो कार्पेल होगा या स्टेमेन होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल हुआ। जब फ्लावर के अंदर स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में होंगे तब वो बाइसेक्सुअल होगा। उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। When it contains both the stamens and carpels, stamen is the male reproductive part and produces the pollen grains that are yellowish in color. तो स्टेमेन जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower. तो कभी कभी किसी फ्लावर को आप टच करो और आपके हाथ में येलो कलर आ जाता है तो आप समझ जाओ आपके हाथ में स्टेमेन आ गया है। Carpel is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. The swollen bottom part is called the ovary. तो यहाँ पर जो swollen फूला हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरी। The middle elongated part is the style. तो ये मिडल वाला पार्ट जो है इलोंगेटेड, लंबा हुआ, राइट, उसको हम बोलते हैं ओवर स्टाइल। द ओवरी contains ovules and each ovule has an egg cell. तो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं एग सेल सबके पास। The male germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule, and this fusion of the germ cells or fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into a new plant. तो फ्लावर के अंदर स्टेमेन में से यो येलोइश कलर का जो जर्म सेल्स होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, वो फीमेल की ओवरी में, है ना, जो एग सेल होता है उसको जाके यूनाइट मिल जाता है उसमें, और फिर वो जाइगोट बनता है और उसमें से एक नया फूल बनता है। फिर दस द पोलन्स pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. तो प्लांट फीमेल फ्लावर का जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट, स्टिग्मा बोलते हैं इसको, दिस इज स्टिग्मा। यहाँ पर होती है स्टाइल और यहाँ पर होती है ओवरी। तो मेल पोलन ग्रेन्स यहाँ पहले आते हैं स्टिग्मा पे, स्टिग्मा में से नीचे उतरते हैं स्टाइल में, और स्टाइल में से होते हुए वो पहुँच जाते हैं ओवरी में, जहाँ पर वो एग सेल से मिल जाते हैं और एक जाइगोट बनता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड,
इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ओकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर जो है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, यानी कि फ्लावर जो है वो बायसेक्सुअल है, और स्टेमेन में से स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा में से स्टाइल में जाता है और स्टाइल में से ओवरी में जाता है, तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक ही फूल में से मेल पार्ट में से फीमेल पार्ट में जो फ्लावर में जाता है पोलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर, इट इज़ नॉन एज क्रॉस पोलिनेशन। अभी देखो, ये एक फूल है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये उसका स्टेमेन है और ये इसका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट है, एंजियोस्पर्म, राइट। अभी यहाँ ये सेम फूल है, एक ही फूल है, राइट, तो स्टेमेन में से ये फीमेल पार्ट में गया, राइट, फ्लावर एक ही है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। अभी समझ लो ये दो फूल हैं, एक ही प्लांट में लगे हुए हैं, राइट, यहाँ से इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यहाँ से उड़ के इस फ्लावर में, ये दो अलग अलग फूल है ना, तो इस फूल से इस फूल में आ गए, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अभी होता क्या है, ये दो फूल जो हैं, या तो सेम प्लांट में, एक ही झाड़ में दो फूल होते हैं, राइट, और कभी कभी क्या होता है कि ये एक प्लांट में होता है और ये वाला फूल दूसरे प्लांट में होता है, अलग अलग प्लांट में। और अगर यहाँ से फूल में से उड़ के इस फूल में आ गया, तब भी वो सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। ओके, तो अगर एक ही फूल के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक ही फूल के अंदर यहाँ से यहाँ, तब वो सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। एक फूल में से दूसरे फूल में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन के वक्त दो फूल या तो एक ही प्लांट में होते हैं या अलग अलग प्लांट में होते हैं। ओके, अभी अलग अलग प्लांट का मतलब है कि ये अगर रोज़ का प्लांट है, ओके, तो बाजू में दूसरा प्लांट भी रोज़ का ही होना चाहिए, सनफ्लावर का होगा तो वो नहीं होगा। आई बात समझ में कि ये रोज़ का प्लांट है, तो इसका मेल पार्ट जो है, राइट, उसमें से पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर सनफ्लावर का प्लांट है, तो सनफ्लावर के प्लांट में भी फीमेल बॉडी पार्ट्स होंगे, तो मेल में से फीमेल में जाएगा, तो अब वो नया फूल कौन सा बनेगा, रोज़ का बनेगा कि सनफ्लावर का बनेगा? एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा तो कहाँ होगा? सेम टाइप के फ्लावर होने चाहिए। ये अगर रोज़ है तो ये भी रोज़ प्लांट होना चाहिए, ये अगर सनफ्लावर है तो ये भी सनफ्लावर ही होना चाहिए। अंडरस्टूड? On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to the another, it is known as cross-pollination. This transfer of pollens from one flower to the another is achieved by the agents like wind, water और animals. अब ये जो फ्लावर में से, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है, वो फूल के पोलन ग्रेन्स के पैर तो होते नहीं कि उड़ के, पंख नहीं होते कि उड़ के इसमें चले जाएं, तो उसको कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद से ही वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो या तो हवा में, हवा तेज़ चलेगी तो उड़ के पहुंच जाएंगे, या पानी बारिश की सीज़न में, या एनिमल्स के कोई जानवर कुछ खाने गया, उस प्लांट के पत्ते खा रहा था और बाजू में फूल थे, तो जब वो पेड़ हिलेगा तो प्लांट के फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स इस एनिमल के स्किन के ऊपर आ जाएंगे, फिर यही एनिमल दूसरे फ्लावर में खाने जाएगा, तो इसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स लगे थे वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो गए।
तो या तो विंड या तो वाटर या तो अदर एनिमल्स की मदद से वो ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary। तो स्टिग्मा तक तो पहुंच गया फ्लावर के, राइट। फिर स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा तक तो पहुंच गया, फिर स्टाइल से होते हुए एग सेल तक, यहाँ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary। तो जो ग्रेन होता है उसमें से एक लंबी ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी, फिर वो ट्यूब नीचे ओवरी तक जाएगी, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule। तो जहाँ ओव्यूल्स में, ओवरी में जहाँ ओव्यूल्स होते हैं वो सेवरल टाइम्स डिवाइड हो गए, सेल्स जो होंगे ना बहुत बार डिवाइड हो जाएंगे। फिर द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कॉट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। फिर जो ओव्यूल होता है सॉफ्ट है ना, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाएगी, टफ कॉट कवर आ जाएगा और उसको हम बोलते हैं सीड बन गया अभी ये, राइट। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। फिर ओवरी, राइट, वो एक तेज़ी से यूं फूलनी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और उसमें से फिर एक फ्रूट बाहर आएगा। Meanwhile, the petals, sepals, stamens and style and stigma may shrivel and fall off। तो जब ये एक बार मेल एग सेल जो होता है वो फीमेल एग सेल के पास पहुंच जाता है, जाइगोट बनना शुरू हो जाता है, फिर जो फूल होते हैं ना उसकी पखड़ियाँ जो होती है, उसके पत्ते जो होते हैं वो फिर बिखर के गिर जाते हैं नीचे, राइट, फॉल ऑफ। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant। The seed contains the future plant or the embryo which develops into a seedling under appropriate conditions, and this process is known as germination। तो मान लो आप जो है कोई एक फ्रूट खा रहे हो, एग्ज़ाम्पल कि मैं एप्पल खा रहा हूँ, तो एप्पल के जो बीज आते हैं वो हम फेंक देते हैं, है ना, खाते खाते। अब वो बीज या तो हम डस्टबिन में डाल के आएंगे या जानवर के लिए जो खाना इकट्ठा करते हैं उसमें डाल के आएंगे ताकि जानवर खा जाएगा, राइट। तो किसी ना किसी तरह जब वो सीड आप देखते हो तो वो सीड को आप सीड बीज मत समझो, उसको समझो कि ये पूरा जंगल है प्लांट का, क्योंकि इस सीड को अगर जर्मिनेट किया गया, उसको सही कंडीशंस मिली, अर्थ वाटर एयर सनलाइट, तो इसी सीड में से फिर धीरे धीरे एक प्लांट बनना शुरू होगा, फिर इस प्लांट के अंदर भी फ्लावर आने शुरू होंगे, फिर इस फ्लावर के अंदर से फिर फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होगा, फिर उसमें से सीड बनेगा और उसमें से ओवरी में से फ्रूट बनेगा और फिर अगेन फ्रूट के अंदर बीज आ गया तो फिर उसी बीज को फिर दूसरी जगह डालो, राइट। सो दिस मल्टीप्लिकेशन, एक एप्पल में से हज़ारों एप्पल्स बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। ओके। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन पेपर है, राइट, तो टीचर क्या करती है, एक क्वेश्चन पेपर पहले पेज में लिख लेती है, फिर उसको कंप्यूटर में टाइप कर लेती है, फिर चेक कर लेती कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक होगी तो सुधार लेगी, राइट। और फिर उसको देखो, एक लिखा हाथ से कुछ, फिर टाइप किया, है ना, फिर प्रिंट निकाली और देखा कुछ मिस्टेक है तो हाँ जो मिस्टेक थी वो सुधार ली कंप्यूटर में, फिर उसकी प्रिंट निकाली,
कि हाँ इसमें अब कोई मिस्टेक नहीं है। तो जिसमें मिस्टेक नहीं थी उसको एक जेरोक्स निकाली हमने, तो जैसी जेरोक्स निकाली हूबहू वैसी ही निकली, ओरिजिनल के जैसी। अब उसमें से बहुत सारी कितनी जेरोक्स कर सकते हो ये बताओ आप। तो ओरिजिनल जो है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कितनी भी जेरोक्स निकाल लो उसकी इंक कम नहीं हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ अरे यार तू मेरी साइकिल ले गया था, कितना घुमाया, कितना उसका टायर घिस गया देखो। लेकिन कभी ऐसी किसी बुक का हुआ कि कितना पढ़ा मेरी बुक में से, एक बार चैप्टर पढ़ा तो उसके अक्षर लाइट हो गए, फिर दूसरी बार पढ़ा तो और लाइट हो गए, तीसरी या चौथी बार पढ़े तो अक्षर ही गायब हो। क्यों? क्योंकि तुमने सारा पढ़ लिया, अब वो तो सारा तुम्हारे दिमाग में चला गया, बुक में कुछ नहीं बचा। नहीं होता ना कुछ। हाँ, तो जब एक सीड होता है तो वो सीड को आप समझो कि इसके अंदर पूरा एक जंगल फैला पड़ा है, राइट। अगर उसको सही मात्रा में एयर वाटर सनलाइट मिले तो वो एक पूरा जंगल बन सकता है। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So far we have discussing the variety of modes that different species used for the reproduction। तो अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सब अलग अलग होता है। Let us now look at the species that we are most interested in, namely the human beings। तो फ्लावर में कैसा होता है, फ्रूट में कैसा होता है, एनिमल्स यूनिसेल्यूलर में कैसा होता है, अमीबा में कैसा होता है, हाइड्रा में कैसा होता है, ये सब देख लिया। अभी ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। एक पॉइंट से शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर। सबको पता है कि हम लोग जैसे स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं और जैसे जैसे एज हमारी बड़ी होती जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आवर हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10th। हमारी हाइट जो थी वो हाइट बढ़ गई। एंड सो डज आवर वेट ऑल्सो। हमारा वज़न भी बदल गया। जब हम सेकंड में या फर्स्ट में थे तो हम कुछ 20-30 किलो के थे और जैसे जैसे हम 10th में पहुंच गए तो हमारा वज़न कुछ 40-50 किलो जितना हो गया, राइट। वेट समटाइम्स टू मच, कभी कभी तो बहुत वज़न हो जाता है हमारा। वी एक्वायर द टीथ। पहले हमारे मुंह में दांत ही नहीं थे, फिर कुछ उम्र के बाद दांत आने शुरू हुए गए, फिर वो सारे के सारे दांत एक बार गिर भी चुके, है ना। मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, दूध के दांत, वो सब गिर चुके और उसकी जगह नए आते गए, राइट। फिर so called milk teeth and acquire the new ones। all of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger। But in early teenage years a whole new sets of changes occurs that cannot so some of the changes common becomes apparent, but in the early teenage years a whole new set of changes occur that cannot be explained simply as body enlargement। Instead the appearance of the body changes, proportions changes, new features appear and so do new sensations। तो स्पेशली जब हम टीनेज पे पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस, राइट, जिसको हम सिर्फ बॉडी ग्रोथ का नाम नहीं दे सकते हम, राइट। प्रोपोर्शंस चेंज होते हैं। सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। We begin to notice the thick hair growing in the new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs। तो सबसे पहली चेंज नज़र आती है हमें वो होता है
कि बॉडी के कुछ पार्ट्स में हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर है ना, और हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर. देन which can become darker in color. Thinner hair can also appear on the legs and arms as well as on the face. अभी देखो 6, 7, 8, 9 तक यहाँ पर बॉयज़ को बाल एकदम थिन या पतले होते हैं. जैसे ही वो 10th या 11th में आते हैं तो धीरे 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 मुस्टैच और दाढ़ी शुरू हो जाती है, कुछ कुछ बाल आने शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop the pimples भी आने शुरू हो जाते हैं, है ना, फेस के ऊपर. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in the new ways. और कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो हम समझने लगते हैं कि now we have become grown up. On the other hand, there are also changes taking place that are different between the boys and the girls. और ये तो कॉमन चेंजेस हैं आना, राइट. फिर बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं, राइट. In girls, the breast size begins to increase with the darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast. है ना, गर्ल्स में फिर चेस्ट बड़ी होने लगती है. ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम. मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है एट दिस टाइम. बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस. लड़कों को दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है. देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक. आवाज़ जो बच्चे की आवाज़ होती है ना, वो लड़कियों जैसी पतली होती है. जैसे ही वो टीनेज पे होता है तो उसकी आवाज़, लड़के की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी क्रैक यानी कि मोटी होने लगती है. फर्दर द पेनिस ओकेशनली बिगिन्स टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट. तो फ्रॉम वेयर वी यूरिनेट, जहाँ से बाथरूम होता है, वो पार्ट इलोंगेट भी होना शुरू हो जाता है. फिर all of these changes take place slowly over a period of months and years. और जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं, साल बढ़ते जाते हैं, तो उसमें चेंजेस भी आते जाते हैं. They do not happen all at the same time in one person and nor do they happen at an exact age. वो चेंजेस जो आते हैं सब में एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आते हैं. कभी कभी समझ लो किसी को 8th में ही फेस के ऊपर दाढ़ी और मूंछ आने शुरू हो गए. किसी को 12th तक मान थोड़ी सी मूंछ आई है ना. तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि 10th में जब तक आप पहुंचते हो तब मतलब 10 + 5 15 ईयर्स के हो गए तो जो भी 10th में बच्चे होंगे सबकी दाढ़ी मूंछ होगी. नहीं, किसी किसी की 12th तक भी नहीं होती है, किसी की कॉलेज में भी पहुंचते तब आती है, और किसी को जो 10th नहीं 6, 7 से ही मूछे होनी शुरू हो जाती है, राइट. सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट एज के ऊपर नहीं होता है पर्टिकुलरली, लेकिन अराउंड दैट एज, है ना. ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर. तो और वो एक साथ संपूर्ण भी नहीं हो जाती जल्दी जल्दी. So, for example, thick hair on the face in boys appears as few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform. तो पहले तो एक दो जगह पर ही बाल होते हैं, है ना, पूरी दाढ़ी नहीं आ जाती है. फिर जैसे जैसे टाइम जाता है फिर एक बाल यहाँ निकला, फिर एक यहाँ निकला, 4-5 यहाँ निकले, ऐसे करते करते पूरा फेस दाढ़ी से भर जाता है. Even so, all these changes show differences between people, just as we have differently shaped noses or fingers. हमारे देखो सबके नाक का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अलग होता है, फिंगर्स के स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं. And so also we have different patterns of the hair growth.
और द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट और द पेनिस। उसी तरह सबकी ब्रेस्ट साइज़ अलग होती है, पेनिस की साइज़ अलग होती है, हेयर फेस पे जो आता है वो डेंस बहुत घाटी होती है, वो पतली पतली होती है, वो सब डिफरेंट चेंजेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ऑल ऑफ these चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो वो बॉडी सेक्सुअली कितनी मैच्योर हो गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? क्यों दिखाती है बॉडी हमारी ऐसी चेंजेस? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टी सेल्यूलर बॉडीज टू कैरी आउट द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, तो हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो उस सेल को फंक्शन करने के लिए भी उसमें चेंजेस आते हैं। The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special cell and tissue types to create them. तो प्लांट में तो हमने देखा उसके अंदर अलग अलग टिश्यू होते हैं, अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पज़। उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो ये पर्पस करते हैं। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begins to mature, and this period during adolescence is called the puberty. तो देखो, जब आप सेकंड में थे तब आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो गई, 9-10 तक आपकी हाइट बढ़ी। ओके, तो जब आपकी हाइट बढ़ रही थी, दूसरी बॉडी के चेंजेस आ रहे थे, तब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो थे वो नील सुसुप्त अवस्था में ही थे, उसमें इतना ग्रोथ नहीं था। फिर एक बॉडी अपना पर्टिकुलर शेप ले लेती है, राइट, फिर उसका ध्यान जो है वो ग्रोथ के ऊपर नहीं रहता है ना, उस बॉडी के ऊपर। अब उसके सेक्सुअल एज के ऊपर डेवलपमेंट का पीरियड शुरू होता है, राइट। जैसे देखो, आप मकान बना रहे हो आप, तो सबसे पहला काम होता है कि दीवारें चढ़ जाना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर लग जाना, फिर उसके बाद उसके ऊपर कलर लगता है। तो जब तक वो दीवारें प्लास्टर हो रही हैं तब तक कलर की हमको टेंशन ही नहीं होता है ना। जब वो दीवारें बन जाएंगी, प्लास्टर लग जाएगा, तब जाके हम कलर खरीदने जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी तो पाया पड़ा है और हम कलर खरीदने निकल गए, वो तो लास्ट में आता है। अभी तो घर के लिए क्या ज़रूरी है कि दीवार के लिए सीमेंट और मिट्टी ज़रूरी है, पहले हम वो लेने जाते हैं। उसी तरह बॉडी, पहले हाइट बॉडी ग्रो करती है, वज़न बढ़ता है, एक पर्टिकुलर शेप आ जाता है, फिर उसके अंदर सेक्सुअल और एडोलेंस एज के जो चेंजेस आते हैं वो डेवलप और ग्रो होना शुरू हो जाता है, राइट। इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस? तो ये सारी चेंजेस जो है वो रिप्रोडक्टिव में कैसे पार्ट लेती हैं? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together, and this can happen by the external release of the germ cells from the bodies of the individual, as happens in the flowering plant. अब एक फ्लावर जो है उसमें कुछ ही एक ऋतु, मतलब वो जब फूल जो था वो एक छोटी सी बड जितना होता है, फिर धीरे धीरे कली बनता है, फिर एक फूल बन जाता है, फिर उसके अंदर जर्म सेल्स ने वो सब आने लगते हैं। जब वो छोटी कली होती है तब में उसके अंदर ये मेल फीमेल गेमेट में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। जब वो बड जितनी होती है फिर धीरे धीरे छोटी कली होती है, फिर धीरे धीरे फ्लावर बनता है, फिर वो ट्रांसफ़र शुरू होता है।
उसी तरह इन इंडिविजुअल्स ह्यूमन बींग्स में भी मेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सेल्स बनते हैं। फिर वो सेल एक सेल जाके दूसरे सेल को मिलेगा, राइट, तब उसमें से वो फर्टिलाइजेशन शुरू होगा और फिर उसमें से एक न्यू बॉर्न बेबी बनेगा। Or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion। अब क्या हो सकता है देखो कि लेट अस टॉक अबाउट, पहले क्या होता था कि एक बॉडी में से दो बॉडी, ये दो बॉडीज हैं वो दोनों यूनाइट होते हैं, राइट, जॉइंट होते हैं। तब क्या होता है कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में सेल ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। फिर बॉडीज अलग हो गई, अब इसके अंदर सेल्स आ गए हैं, है ना। अब वो सेल्स धीरे 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 डेवलप होंगे, राइट। अब क्या हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इस बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो हमने निकाल लिए, इस बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो हमने निकाल लिए, और जो दो सेल्स निकाले थे उसको हमने यूनाइट कर दिया एक लेबोरेटरी में, राइट, और फिर उसमें से एक नई बॉडी बनेगी। लेकिन उसको ग्रो होने के लिए एक ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ती है ना, जैसे बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है ना, तब जाके वो फ्लावर बनता है। तो एग सेल इसमें से ले लिया, इसमें से मेल सेल ले लिया, दोनों को यूनाइट भी कर लिया। अब उसको ग्रो होने के लिए कहीं ना कहीं इम्प्लांट किया जाता है, राइट, किसी के पेट में उसको बोया जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, राइट। तो जनरली अर्लियर क्या होता था, राइट, कि दोनों यूनाइट होते थे फिर ही ट्रांसफ़र होता था। अब क्या होता है कि इसमें से बीज निकाल लिया, इसमें से बीज निकाल लिया, दोनों को यूनाइट कर लिया और फिर उसको किसी और जगह पर फर्टिलाइज कर दिया और फिर उसमें से न्यू बॉर्न बेबी बनेगा। इफ एनिमल्स आर to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are the signals that sexual maturation is taking place. राइट, सो सिग्नल्स तो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनने शुरू होते हैं और वो डेवलप होने लगते हैं। तो हमको बाहर कैसे पता चलेगा कि वो डेवलप हो चुके हैं अभी, राइट। तो उसका सिग्नल तो होना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर दाढ़ी के ऊपर बाल आने लगते हैं, यहाँ पर बाल आने लगते हैं, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है। तो दिस आर द सिग्नल्स के अंदर के जो सेल्स हैं वो अभी रेडी हैं फर्टिलाइज्ड होने के लिए। Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cells between the two people needs special organs for the sexual act. तो एक बॉडी में से So on the other hand, the actual transfer of the germ cells between two people needs special organs for the sexual act, such as the penis. When it is capable of becoming erect, in mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction. तो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जर्म सेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं। वो पार्ट दे टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, वो प्रोसेस में वो पार्ट्स आर इन्वॉल्व, राइट। तो वंस द पेनिस इन मेल इज बिकम और कैपेबल, वो इरेक्ट होने के कैपेबल, लार्ज होने के कैपेबल,
और सेल्स उसमें से बाहर आ सके उतना कैपेबल हो जाएगा, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा फीमेल बॉडी में जहाँ पर वो जायगोट डेवलप होगा। फिर जो जायगोट में से बेबी आएगा उसको खाने पीने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खा तो सकेगा नहीं क्योंकि बचपन में दांत नहीं होते हैं उसके सीधे, तो तब तक वो डिपेंड रहता है मदर्स मिल्क के ऊपर। तो मम्मी जो भी खाती है उसमें से जो मिल्क बनता है वो मिल्क उसको काम आएगा। तो मिल्क ब्रेस्ट जो होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करनी हो जाए वो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर ही पॉसिबल होता है, राइट। सो देन ओनली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसमें पार्ट प्ले करते हैं, right? So the first system is male reproductive system that we are going to see tomorrow. Till then, take care and goodbye.